خاص میں آپ کو بتائیں کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی مذموم پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی ہوگی۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے پوری طاقت سے نمٹا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء کا عزم۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈر نے قرار دیا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی زیر نگرانی معاشی سرگرمیوں کی مکمل حمایت کی جائے گی۔ معیشت کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے حکومت کی مکمل معاونت کی جائے گی۔ کور کمانڈرز نے یوم دفاع اور شہداء کو بھرپور انداز میں منانے پر قوم کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ISPR کے مطابق کانفرنس کے شرکاء نے 6 ستمبر کو ملک بھر میں یوم دفاع و شہداء کو بھرپور طریقے سے منانے پر اپنی قابل فخر قوم کا شکریہ ادا کیا۔ کانفرنس میں قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں اپنی حکمت عملی کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق شرکاء نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے مذموم پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے عناصر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے۔ فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گرد جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، وہ ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ ISPR کے مطابق کانفرنس کے دوران ضم شدہ اضلاع اور بلوچستان کے سرحدی اضلاع میں پائیدار امن و ترقی پر بھی زور دیا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ملک میں معاشی سرگرمیاں جو اس وقت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی زیر نگرانی جاری ہیں، اس کی مکمل حمایت کی جائے گی۔ اعلامیہ کے مطابق آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے اور فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر زور دیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران و جوان اور سول سوسائٹی کے شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ IMF کی بجلی کے بلوں میں ریلیف کی مشروط منظوری۔ ریلیف صرف 200 یونٹس استعمال کرنے والے صارفین کے لیے ہوگا۔ اس سے زائد یونٹس استعمال کرنے والے صارفین پورا بل ادا کریں گے۔ 200 یونٹس استعمال کرنے والوں کو 3 سے 4 روپے کا ریلیف ملے گا۔ بل ایک ساتھ میں وصول کیے جائیں گے۔ تاریخ گزرنے کے بعد ادائیگی پر جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ IMF کا بجلی پر ریلیف دینے سے انکار۔ 200 یونٹ کے بلز کی اقساط کابینہ منظوری سے مشروع۔ حکومت مہنگی بجلی کے ستائے عوام کو رعایت دینے کے لیے کوشاں ہے، مگر انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ بجلی بلوں پر صارفین کو ریلیف دینے سے متعلق IMF اور پاکستانی حکام میں رابطہ ہوا۔ اسلام آباد نے 400 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو ریلیف دینے کی تجویز دی، جس کو عالمی مالیاتی ادارے نے رد کر دیا۔ زائد بلوں سے پریشان شہری کہتے ہیں ملک کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا گیا ہے۔ گورنمنٹ مکمل جھوٹ بول رہی ہے۔ جو IMF کہہ رہا ہے انہوں نے وہی کرنا ہے، کسی کو کوئی ریلیف نہیں دینا۔ یہ قوم کے، اس ملک کے دشمن ہے۔ حکومت چھوٹے صارفین کے لیے ریلیف لینے میں کامیاب ضرور ہو گئی ہے۔ IMF نے 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کے بلز قسطوں میں لینے سے اتفاق کر لیا۔ عوام نے قسطوں کی شکل میں ملنے والی رعایت کو مسترد کر دیا۔ لولی پاپ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 200 یونٹ تو یہ تو ایک صرف نا بہانہ ہے آل مٹول کرنے کا، کوئی ریلیو نہیں ہے۔ 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے کو 15 سے 100 سے 2000 روپے فکس ہونا چاہیے کہ وہ آدمی اتنا بل دے، چونکہ جو 200 یونٹ استعمال کر رہا ہے اس کی آمدنی میکسیمم 50,000 45,000 کے لگ بھگ ہے، تو 200 یونٹ کا اگر 10-12,000 کا آپ اس سے بل چارج کریں گے تو وہ کہاں سے دے گا؟ ذرائع کے مطابق تاریخ گزرنے کے بعد 200 یونٹ تک کی ادائیگی پر جرمانہ نہیں ہوگا۔ یہ رعایت صرف اگست کے بلوں پر ہی حاصل ہوگی۔ نگران حکومت نے بجلی کی چوری روکنے کے لیے ملک بھر میں کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ پہلے روز لاہور اور اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں سینکڑوں کی تعداد میں بجلی چور پکڑے گئے، جن کے کنیکشن منقطع کر کے کروڑوں کے جرمانے وصول کیے گئے۔ درجنوں مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں اور کئی افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ لیسکو کے مطابق سابق رکن قومی اسمبلی سعید ظفر بھی بجلی چوری میں ملوث نکلے۔ بجلی چوروں کے خلاف ملک گیر آپریشن شروع۔ پہلے روز سینکڑوں بجلی چور پکڑے گئے، کئی گرفتار، کروڑوں کا جرمانہ وصول۔ سزاؤں کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ۔ سیکٹری پاور راشد لنگڑیار کے مطابق ملک بھر میں بلا تفریق کریک ڈاؤن جاری ہے، بجلی چور کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیسکو نے گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے 330 بجلی چور پکڑ لیے۔ 330 ملزمان سے 4 کروڑ 74 لاکھ 27 ہزار روپے چارج کیے گئے۔ 130 FIR
arrest दर्ज और 11 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक साबिक रुकने कौमी असम्बली सईद जफर भी बिजली चोरी में मुलव्वस निकले, जबकि साबिक चेयरमैन कौंसल राना अयूब से 69,457 रुपए चार्ज किए गए। आइस्को के मुताबिक ईसा नगरी में टेलीफोन की तारों के जरिए बिजली चोरी पकड़ी गई। क्रैकडाउन के दौरान सैकड़ों कनेक्शन काट दिए गए, जबकि लाखों रुपए के जुर्माने किए गए और मुतअद्दिद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करा लिए गए। दूसरी तरफ बिजली चोरों को सख्त सजा देने के लिए पावर डिवीजन ने वजारत कानून से मिलकर ऑर्डिनेंस की तैयारी भी शुरू कर दी। बिजली चोरों को 6 माह से 3 साल तक सजा और 5 लाख तक जुर्माने की तजवीज ज़ेर गौर है। मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें 90 से 120 दिनों में फैसला करने की पाबंदी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ताजिर बरादरी को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में ऐवान सनअत व तिजारत के वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात यकीनी बना रही है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर एहसन जफर बख्तावरी की वफद के हमरा मुलाकात। ताजिर बरादरी ने अनवारुल हक काकड़ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को ताजिर बरादरी के मसाइल के हवाले से आगाह किया और उनके हल के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द की तजावीज़ का खैर मकदम किया और उनके मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात यकीनी बना रही है, जिसके लिए टैक्स का निज़ाम डिजिटलाइज किया जा रहा है। जब तक पाकिस्तान में टैक्स वसूली में इजाफा नहीं होता, तब तक मुल्की मईशत की बेहतरी मुमकिन नहीं। अनवारुल हक काकड़ का मजीद कहना था कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुल्क भर बिलखुसूस सरहदी इलाकों में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि बिजली के शोबे में इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। बिजली चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने FPR पॉइंट ऑफ सेल्स के दायरा कार को वसी करने के हवाले से जल्द रिपोर्ट पेश करने और पाकिस्तानी सफारत खानों में तैनात तलाशियों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की भी हिदायत की। कराची में बिजली के तारों में कुंडा लगाने पर झगड़े ने एक जान ले ली। कराची के इलाके सुरजानी टाउन सेक्टर 4 में फायरिंग से जमात इस्लामी के कौंसलर मोहम्मद हबीब जाँ बहक हो गए। वाक़या बिजली के कुंडे की वजह से झगड़े के दौरान पेश आया। पुलिस के मुताबिक झगड़े में 3 अफराद जख्मी भी हुए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि वाक़या हुकूमत के लिए शर्मनाक है। निगरान वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला नोटिस लें। कराची में बिजली के तारों में कुंडा लगाने पर झगड़े ने एक जान ले ली। सुरजानी टाउन में तारों पर कुंडा लगाने की वजह से 2 ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा हो रहा था। यूसी काउंसलर मोहम्मद हबीब ने मामला खत्म करवाने की कोशिश की। मुल्जिमान ने तैश में आकर फायरिंग कर दी। मोहम्मद हबीब गोली लगने से जाँ बहक हो गए। झगड़े के दौरान सैयद अदनान, मुजम्मिल और मोहम्मद बाबू नामी 3 अफराद जख्मी हुए। मकतूल मोहम्मद हबीब की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने अब्बासी शहीद अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। उन्होंने निगरान वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला और IG सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा, ये निगरान हुकूमत का इम्तहान है कि वो कब्जा माफिया से आवाम की जान छुड़वाएं। ये लोग उम्मीद अली काजी साहब और हबीब भाई जिनको शहीद कर दिया गया, ये वहाँ के मकामी लोगों के कहने पर कि भाई हमें कुंडा माफिया ने मुसल्लत हम पर है और हम चाहते हैं कि हमारे मीटर लगें और हमारे साथ मीटिंग करें। तो अभी ये मीटिंग करके निकले हैं कि उन्होंने आकर इन पर अटैक किया है और गोलियां चलाई हैं, जिस पर हबीब भाई शहीद हो गए, उनके सीने में गोली लगी है। एक हमारे भाई को उठाकर ले गए गोठ में और वहाँ मारा पीटा, और जब इनको ये इत्तला मिली कि एक्सपायर हो गए हबीब भाई, तो उन्होंने जाकर छोड़ा कि भाई अब भागो यहाँ से। हुकूमत से कहना चाहते हैं, DG रेंजर साहब, IG साहब, मैं उनसे ये डिमांड करता हूँ कि फौरी तौर पर इन मुजरिमों पे हाथ पड़ना चाहिए और इनके सरपरस्तों पे हाथ पड़ना चाहिए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला ग्रुप चोरी की बिजली के बदले रकम वसूल करता था। कैमरामैन उसामा रब्बी के साथ सैयद आतिफ अली, GNN कराची। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की 25वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी के ज़ेरे एहतमाम ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन का इस्लामाबाद में इनेकाद। मुल्क भर से मारूफ कानूनदान शरीक हुए। कन्वेंशन ने करारदाद की भी मंजूरी दी, जिसमें असम्बलियों की तहलील के बाद 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया गया। तफसीलात देखते हैं इस्लामाबाद से इकरामुल्लाह जोया की रिपोर्ट में। मुल्क भर के वकला तंजीमों के सरबराहों कानूनदानों ने ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन में हिस्सा लिया। कन्वेंशन में मारूफ कानूनदान हामिद खान, आबिद जुबैरी, बाबर अवान समेत दीगर वकला ने भी खिताब किया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए वकील हामिद खान ने कहा कि पिछले साल आइन की धज्जियां बखेरी गईं और इसमें बाज लोग वजीर भी थे जिन्होंने साथ दिया और आज हमारी ये हालत है। आइन की धज्जियां बखेरी गई हैं और उसमें बज़ाहिर बाज लोग जो वजीर भी थे, वो बज़ाहिर वकील भी थे, उन्होंने उसका पूरा साथ दे के आज हमें
इस हालत में लेके गए हैं। आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने खिताब करते हुए कहा कि 90 दिन में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की और फैसला हुआ, लेकिन फैसले पर अब तक अमल दरामद नहीं हुआ। अगर अदालतें अपने ऑर्डर्स को मनवा नहीं सकती तो मेरी उनसे गुजारिश है, तो फिर आज ताला लगा दें वो अदालतों को। कन्वेंशन से खिताब करते हुए बाबर अवान का कहना था कि आईन पाकिस्तान कहता है कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात कराए जाएं। Let there be elections all over Pakistan within the constitutional mandate of 90 days. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की 25वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी के ज़ेरे तमाम आइन की हुक्मरानी और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए आल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन ने करारदाद मंजूर की, जिसके मुताबिक इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि असम्बलियों की तहलील के बाद 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराए जाएं। करारदाद में बिजली और पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफे के साथ साथ सियासी रहनुमाओं की बार बार गिरफ्तारियों और इख्तलाफी आवाज को दबाने की भी मजम्मत की गई। इकरामुल्लाह जोया, GNN इस्लामाबाद। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्क में इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। मौजूदा सूरत हाल की वजह से फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। MQM, अख्तर मेंगल समेत दीगर ने इत्तफाक राय से फौरी इलेक्शन कराने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त में तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। अदम एतमाद लाने का फ़ायदा चेयरमैन PTI को हुआ। पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में आकर फैसले से फिर गई थी। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो उस वक्त इलेक्शन हो जाते। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि PTI चेयरमैन लाने वालों ने एतराफ़ किया कि उनका एजेंडा कुछ और है। PTI को इसलिए लाया गया कि मुल्क को माशी तौर पर कमज़ोर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑडियो लीक्स केस में हुकूमती एतराज़ पर महफूज शुदा फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट आज ये फैसला सुनाएगी। तोशाखाना केस से मुतालिक नैब तहकीकात, चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी एक बार फिर तहकीकाती टीम को अपने जवाबात से मुतमईन नहीं कर सकी। ज़राए के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने मजीद छानबीन के लिए एक बार फिर बुशरा बीबी को तलब कर लिया है। नैब रावलपिंडी की तोशाखाना केस से मुतल्लिक तहकीकात, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी एक बार फिर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुई। बुशरा बीबी से नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 4.5 घंटे तक तफ्तीश की। मामले की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी 4 घंटे की तफ्तीश के बावजूद नैब को मुतमईन न कर सकी, जिस वजह से नैब ने बुशरा बीबी को एक बार फिर तलब करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक नैब ने सवाल किया कि तहाइफ किसको और कितने में फरोख्त किए और तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाने से कबल क्यों फरोख्त किए। ये भी सवाल उठाया गया कि तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाने से कबल फरोख्त करने का मशवरा किसने दिया। ज़राए ने मजीद बताया कि बुशरा बीबी से घड़ी, लॉकेट, चेन, टॉप्स, 2 अंगूठियां और ब्रेसलेट लेने के इल्जामात पर सवालात पूछे गए। जाली रसीदों से मुतल्लिक भी पूछगछ हुई। बुशरा बीबी की पेशी के मौका पर PTI के वकील बैरिस्टर गौहर अली भी नैब रावलपिंडी के दफ्तर पहुंचे, लेकिन उन्होंने मीडिया को कोई मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। काबीना इजलास या लिफाफे पर दस्तखत का कहा गया। सानिया निश्तर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में गवाह बन गई। साबिक वज़ीर अमीन असलम ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अमीन असलम का कहना था कि केस पेश करने वाले शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे ना लें, पाकिस्तान आकर जवाब दें। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, सानिया निश्तर और अमीन असलम नैब रावलपिंडी में पेश। दोनों 1 घंटे से जायद नैब के दफ्तर में मौजूद रहे। दूसरी जानिब सानिया निश्तर की नैब रावलपिंडी में बतौर गवाह पेश होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नैब ने रकम मुंतकिली के हवाले से मुख्तलिफ सवालात किए। ज़राए के मुताबिक सानिया निश्तर ने बताया कि काबीना मीटिंग में शहजाद अकबर ने खुफिया लिफाफा दिखाया। उन्हें बस कहा गया कि इस पर दस्तखत किए जाएं। सानिया निश्तर की जानिब से 2 साबिक वज़रा के नाम नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम को बताए गए। ज़राए ने बताया कि सानिया निश्तर की जानिब से दिए गए जवाबात पर नैब मुतमईन रहा। साबिक वजीर अमीन असलम ने बताया कि वो मुशीर थे, इसलिए वो काबीना के वोटिंग मेंबरान में शामिल नहीं थे। काबीना ने खुफिया मुआहदे के तहत फैसला लिया था। मजीद कहा कि शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे न लें, पाकिस्तान वापस आकर जवाब दें। काबीना ने कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट के ऊपर डिसीजन दिया था, तो ओके किया था। लेकिन मेरा क्योंकि मैं एडवाइज़र था, इसलिए मैं काबीना के वोटिंग मेंबर्स में नहीं शामिल होता। तो मेरे से सिर्फ उन्होंने ये पूछा था कि वहाँ पे क्या हाल हवाल हुआ, तो साल बता दें। मैं समझता हूँ उनको वापस आना चाहिए कि उन्होंने केस प्रेजेंट किया था ये, और वो बाहर बैठ के मजे ना लें, वापस आके इसका जवाब दें कि क्या किया था।
मलिक अमीन असलम पीटीआई के बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के सरबराह थे और उन्होंने सानिया 9 मई के बाद पार्टी को खैरबाद कह दिया था। सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद अबुल हसन अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात इख्तिताम पज़ीर हुई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने भी इज्तिमाई दुआ में शिरकत की। दुनिया भर से ज़ायरीन जोक दर जोक शरीक हुए। लाहौर से जवाद हसन की रिपोर्ट। बरे सगीर की अजीम रूहानी शख्सियत हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980 में उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने दुआया तकरीब में खुसूसी शिरकत। आखिरी रोज़ भी रूहानी महाफिल का सिलसिला जारी रहा। दाता के परवानों और दीवानों ने ढोल की थाप पर धमाल डाली। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी दाता दरबार हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद हाजिरी के लिए दाता दरबार पहुंची। जगह जगह दूध की सबीलें लगाई गईं और लंगर भी तकसीम किया गया। तीसरे और आखिरी रोज भी रूहानी महाफिल का सिलसिला जारी रहा। दाता के परवानों और दीवानों ने 3 दिन दाता दरबार पर ही गुजारे और इज्तिमाई दुआ के बाद वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। कैमरामैन हारिस के साथ जवाद हसन, GNN लाहौर।